A very warm welcome to the class, guys. I really hope that you guys are doing well. Alright, so let's continue with our discussion. Okay. So last class में जो हम discussion कर रहे थे वो था basically Roman economy. ठीक है. तो अभी हम Roman economy के लिए ही जो discussion है वो कंटिन्यू करेंगे. हमने पूरा agriculture, पूरा Spanish olive oil का जो portion है वो discuss कर लिया था. So we'll now move ahead with that only. ठीक है. चलिए. ओके तो सी गाइस, जहां तक रोमन इकोनॉमी की बात है, हमने एक चीज देखी कि दे हैड like a good system, right? They were selling a lot of Spanish olive oil. Fine, that was there. उसके अलावा भी they had a good fertility. There was a lot of crops which was being grown, right? But do you think it is possible for a country or for an empire to have that kind of fertility or that kind of economic growth all over? Not really. There were certain places which were really backwards as well. ठीक है. तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे. जो regions हैं, जो large expanses हैं, which were much less advanced. Okay. So अरे यार, please wait. ठीक है. तो हम बेसिकली अब उन एरियाज के ऊपर फोकस करेंगे जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड लाइक दे आर सफरिंग, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच दे सफर फ्रॉम. फाइन. So there's this area of Numidia. ठीक है. This is modern day Algeria. Fine. So this is where the practice of transhumans was quite widespread. ठीक है. तो एक area है which is called Numidia, and this is what? This is present day. Sorry. प्रेजेंट डे क्या है ये? दिस इज प्रेजेंट डे अल्जीरिया. ठीक है. सो यहाँ पे क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है गाइस? द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांस ह्यूमंस. ठीक है. अब आप मेरे से पूछोगे कि मैम ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है? सो ट्रांस ह्यूमन इज द हर्ड्समैन, रेगुलर एंड एनुअल मूवमेंट. ठीक है. सो हर्ड्समैन कौन होते? दीज आर बेसिकली नोमैडिक पैस्टरलिस्ट. ऑलराइट. They keep moving from one location to another location looking for good pastures. Fine. Most of the time, these pasture lands or these herders, they would keep moving between the mountains. All right, that is the higher up mountains, and then between the plains. Okay. So this is what transhuman says. It is basically an annual regular movement of the nomadic pastoralists between the higher mountains and the low lying grounds. ठीक है. तो ट्रांसह्यूमंस जो है वो क्या है? मूवमेंट between what? This is the movement between movement between high mountains and plains. Okay. So what is it? This is a regular annual movement. है ना? क्या है ये? Regular annual movement है. Fine. And this is a movement between the high mountains and the plains. Okay. All right. Now, these pastoral communities, as I told you, they were semi-nomadic, guys. They were not entirely nomadic, but yes, they were semi-nomadic and they were constantly on the move. Fine.
and they were so much so on the move that they would be carrying everything, मतलब अपना सारा सामान, अपना पूरा घर बार जिसको हम कहते हैं ना, so they would be carrying everything on their heads while they were moving. They in fact carry their houses, so they lived in oval shaped huts which were known as mapalia. ठीक है, किस में रहते थे? They lived in oval shaped hut, इसको की क्या बोलते हैं? That is known as your mapalia. Fine. So along with their huts and along with their household, they would be constantly on move, guys. ठीक है, constantly on move होंगे, and this move is going to be how? This move is going to be with their households, है ना? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मूव कर रहे हैं अपने एनिमल्स के साथ, वो दे वुड बी कैरिंग देयर एंटायर हाउसहोल्ड्स ऑन देयर बैक, पूरा घर लेकर के चलते थे. ठीक है, फाइन, ऑलराइट. Okay. Now another area which wasn't that developed was in this was the Spanish people in the north. All right. So the northern Spain, you can say, was an area which wasn't very well developed. एक area तो हो गया Numidia, ठीक है? There was one more area which wasn't very well developed, and that was So why was northern Spain not very well developed? है ना? Question ये भी है कि northern Spain well developed क्यों नहीं है? ऐसा क्या हुआ है? So the northern part of Spain was basically inhabited by Celtic speaking peasantry, fine, who lived on hilltop villages called Castilla. ठीक है? So northern Spain क्यों developed नहीं है? Because it was occupied by whom? It was occupied by Celtic speaking peasantry. ठीक है, Celtic एक भाषा है जो हमने कल डिस्कस की थी. So occupied by Celtic peasantry. ठीक है, so it was occupied by whom? It was occupied by Celtic speaking peasantry. Fine. And ये जो Celtic speaking peasantry है, they lived on what? They lived on hilltop villages which were known as Castilla. ठीक है, so they lived on so since it this area has been occupied by the peasantry. ठीक है, क्योंकि ये जो area है ये कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? This has been occupied by the peasantry. That is one of the reasons as to why it wasn't very well developed. ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं रोम के जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही है. ठीक है, since we're talking about economy, it's important to discuss the technological changes which would have taken place. ठीक है, तो लास्ट जो एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो है आपका technological changes. ओके, तो क्या है भाई ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस? चलिए हम वो देख लेते हैं. ठीक है, so technological changes मतलब there were some serious technological advancements which have been made in the Roman Empire, that too at a time period when we are talking about ancient history, है ना? So there was a diversified application of water power. ठीक है, so basically what they were doing is they were using hydraulic mining techniques. ठीक है, so क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? Hydraulic
माइनिंग टेक्निक्स, ठीक है। और ये कहां पे इस्तेमाल हो रहा है? इट वॉज यूज्ड इन स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, फाइन। ओके तो सबसे पहले तो हम समझते हैं गाइस कि हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक जो है वो है क्या, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो हाइड्रोलिक, अब देखो, अब जब आप फिजिकली माइन करते हो चीजों को, फाइन, इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? आप छेनी का इस्तेमाल करोगे, हथौड़ी का इस्तेमाल करोगे, राइट, एंड यू ट्राइंग टू ब्रेक ऑफ द स्टोन्स, फाइन। Now it's actually very difficult to break off the stones using your bare hands and using the tools, ठीक है। So what was used? Water power was used, all right। तो ऐसे cannons create किए जाते थे, कह लो ऐसे water pipes create किए जाते थे, which would force the water in with so much pressure, मतलब इतने, वो water guns देखे ना आपने, जैसे पुलिस जो water charge करती है, वैसे इतने force से पानी आता था कि it would break the stones, all right। What would it do? It would break the stones, इतने ज्यादा फोर्स से जो है वो पानी आएगा, ठीक है, फाइन। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर, डोंट यू थिंक, कि क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं? सो वी आर मेकिंग श्योर कि पानी जो है वो इतने ज्यादा फोर्स से आए, विथ सो मच फोर्स दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक द स्टोन्स, फाइन। सो दैट वाज फर्स्ट थिंग, ओके। Now, and this was being used when in the first and the second centuries, okay। So ऑलराइट, तो इसका इस्तेमाल आप कब देख रहे हो गाइस? इसका इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरीज में, ठीक है, फाइन। इसके अलावा there was well organized commercial and banking system as well, ठीक है। So what was there? Commercial and banking system, fine। तो भाई सही बात है ना कि इतना लंबा अगर ट्रेड कर रहे हैं, दे नॉट जस्ट ट्रेडिंग विद इन देयर एम्पायर बट दे आल्सो ट्रेडिंग विद इंडिया, दिस इज अक्रॉस, इजंट इट? So definitely they would have to have some well organized banking and commercial system, ठीक है। तो ये हो गया क्या? This is all about your banking and commercial system they had. This really helped the traders, ठीक है। तो traders को जो है इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती थी, ओके। ऑलराइट, तो ये हो गई गाइस हमारी इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात। दिस इज ऑल अबाउट द रोमन इकोनॉमी। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, फाइन। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो ओवल शेप्ड हट है ना, मैं इसका एक पिक्चर बना देती हूँ। दिस इज हाउ इट वाज, ठीक है। इस तरह की शेप का जो है वो हट होता था। ओके, दिस इज हाउ द हट इज गोइंग टू बी, ओवल शेप्ड। एंड जस्ट हिल टॉप पे, हिल टॉप के जो विलेजेस हैं जहां पे केल्टिक पेजेंट्री रह रही है, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज योर कैस्टला, गाइस, ठीक है। यहां तक होपफुली सबको क्लियर है। अब जो नेक्स्ट इश्यू हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लेवरी, ठीक है। नाउ आई थिंक अदरवाइज रोमन एम्पायर इज, लाइक नियर परफेक्ट, यू कैन से, फाइन। बट हर एम्पायर में ना, एक जैसे कहते हैं चांद में दाग होता है, वैसे ही हर एम्पायर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है which will make the people question. So slavery was one of them, ठीक है। So next aspect जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है slavery, okay, and you will have to give me 1 minute, let me put my laptop on charge. ओके, सो जो नेक्स्ट एस्पेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस वो क्या है? दैट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग वर्कर्स, एज इन हम बात करने वाले हैं स्लेवरी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना,
वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्लेवरी। हमें कैसे पता कि स्लेवरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाउ डू वी नो दिस? ठीक है, so slavery as an institution was deep rooted. Even Christianity, when it becomes the official religion of Rome, की बाद में होगा जो हम पढ़ेंगे, वो भी जो है इस स्लेवरी की इंस्टीट्यूशन को ना चैलेंज नहीं कर पाया। ठीक है, इवन दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। फाइन, ओके। लेकिन देखिए, इसका मतलब नहीं कि जो बल्क ऑफ लेबर है वो स्लेवरी से ही आता है। फाइन, ऐसा नहीं है। But yes, we can say a majority of the labor was being performed by whom? A majority of the labor was being performed by slaves. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे? ठीक है, सो सबसे ज्यादा जो है मेजोरिटी ऑफ लेबर जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? दैट इज बीइंग डन बाय द स्लेव्स ओवर हियर। ठीक है, और ये जो है ना, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर इटली। ऑलराइट, तो अगर हम इटली की पॉपुलेशन देखें अंडर ऑगस्टस, द पॉपुलेशन वाज ऑफ इटली वाज अराउंड 7.5 मिलियन, जिसमें से कि 3 मिलियन जो है वो स्लेव्स थे गाइस। ठीक है, ये एक बहुत मेजर एग्जाम्पल है। फाइन, सो मतलब इटली में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? इज 7.5 मिलियन। ठीक है, फाइन, एंड स्लेव्स कितने हैं? सो आप एक चीज देखो गाइस कि ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इटली इज स्लेव्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं? हियर यू कैन सी दैट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ स्लेव्स, मतलब आधी से ज्यादा जनता जो है वो स्लेव्स है। तो आप समझ सकते हैं कि स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन वुड हैव बीन रियली इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत जरूरी रहा होगा और बहुत एंट्रेंच रहा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एंट्रेंच रहा होगा। दैट इज वाई नो वन रियली थॉट अबाउट इट। होता है ना कि यार कुछ अजीब लगा ही नहीं होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा एंट्रेंच्ड है ये सोसाइटी में। ठीक है, सो दैट कुड हैव बीन द केस। फाइन, ऑल राइट। ओके, सो अब हम देखते हैं कि स्लेवरी जो है उसके वेज क्या थे। ठीक है, what were the ways of producing slaves? ठीक है, or you can say ways to create slaves. देखिए गाइस, सबसे आसान तरीका है स्लेव्स क्रिएट करने का वॉर। राइट, सो वेन एवर यू हैव अ वॉर, जब भी कोई लड़ाई होगी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप यू कैन टेक प्रिजनर्स ऑफ वॉर, राइट, and these prisoners of war can be turned into what? These prisoners of war can be turned into slaves. सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन if you all remember, the first and the second centuries during the Augustan age has been considered as a period which was very peaceful, right? Hardly any wars were being fought. So अगर wars नहीं होगी तो slaves कहाँ से आएंगे? So you have to look for other ways in which you can, produce more slaves. Fine. So next technique which was there was slave breeding. ठीक है, कि मान लो आपके पास ऑलरेडी स्लेव्स हैं। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज यू आस्क देम टू हैव एज मेनी चिल्ड्रन एज पॉसिबल। फाइन, और जो बच्चे होंगे उनके वो भी ऑब्वियसली स्लेव्स ही होंगे। ठीक है, सो इन दैट वे यू विल ऑलवेज हैव लाइक अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्लेव्स। ओके, यस, एक सेकेंड ना।
Okay. Another way of creating slaves was debt bondage. ठीक है, debt bonds. What do you mean by this? So मान लो if I've taken money from you, है ना, मैंने आपसे पैसे लिए हैं, but I've not been able to pay you back. ठीक है, so in that situation what is going to be done? In that situation I would have to become your slave. ठीक है, मुझे क्या बनना पड़ेगा? मुझे आपका स्लेव बनना पड़ेगा. Why? Because I have not been able to pay you back. ठीक है. The other way in which slaves were created was selling children into slavery. What do you mean by selling children into slavery? तो देखो कुछ माँ बाप होते थे, they would be so poor that they would have no other option but they would sell their children into slavery, and this was done for a period of 25 years. ठीक है, fine. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चे जो हैं उनको भी बेचा जाता था स्लेवरी में, fine, so that you know it could be done, fine, so that at least the parents would have some money that they're able to look after themselves. Okay, so यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? We can see these are the ways in which slaves have been created. Okay, the next topic that we focus on is the management of slaves. ठीक है, कि slaves को manage कैसे करना है. ओके, सो गाइस अगर हम स्लेव्स की मैनेजमेंट की बात करें, सो आप एक चीज देखो, आउट ऑफ 7.5 मिलियन, फाइन, 3 million people are what? 3 million people are slaves. ठीक है, that means there's a huge number of them, right? And when you have such a huge number of them, you would obviously have to manage them, है ना? आपको उनकी देखरेख करनी होगी, उनको मैनेज करना पड़ेगा. तो वो हम कैसे करेंगे? चलिए हम वो देखेंगे कि मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं वो क्या प्रिस्क्राइब की गई हैं. ठीक है, चलो. नाउ सो गाइस देखिए, स्लेव्स जो है ना वो आपके ऊपर, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आई एम अ स्लेव, फाइन, आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माय मास्टर. He is going to feed me, he is going to clothe me, he is going to give me money or no money, he is going to give me a place to live. So maintaining a slave was actually quite a lot of investment. ठीक है, तो अगर आपको slaves रखने हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे पैसे जो है वो खर्च करने पड़ेंगे, right? You have to spend in a lot of money, fine. Why? Because the slaves had to be fed all throughout the year, and so you know holding or the cost of holding a slave was actually going on increasing, fine. That is one of the reasons, fine. So one method of management was never to employ slaves ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, नेवर टू एम्प्लॉय स्लेव्स इन एग्रीकल्चर? व्हाट डू यू मीन एंड व्हाई? यू नो इतनी जो ममता है वो कहां से जाग गई? ये कोई ममता नहीं है गाइस, दिस इज अ स्पेसिफिक economic calculation which is taking place. Okay, so basically if you employ slaves into the agricultural sector was considered to be a back breaking work. मतलब इतना खराब होता था ये काम, ये इतना कह लो इतना तकलीफ दे होता था, इतना ज्यादा मेहनत वाला काम होता था that people died while doing this work. ठीक है, so that is one of the reasons as to why they were not allowed, what? They were not allowed in the agricultural sector. ठीक है, fine. And एक सेकंड ना, So Roman writers in fact have criticized or have advised the landowners against using these slaves in the context of what? In the context of agricultural labor. क्यों बोला गया है? पहली बात, a lot of them is going to be required, fine.
सो ऐसा तो नहीं है ना कि आप इनको वेजेस दे रहे हो, कि आपने जब तक काम कराया आपने रखा और उसके बाद आप इनको हटा दोगे, नहीं, यू हैव टू कीप देम फॉर ऑल ईयर राउंड, ठीक है। सो इफ यू आर मेकिंग देम वर्क इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, you would have some repercussions. क्या है? Too many required, ठीक है, फाइन। तो ऑब्वियस बात है कि उसका खर्चा पानी जो है, उसके कपड़े, उसका रहने का, उसका खाना, वो सब ऑब्वियसली जो है वो आपको ही करना पड़ेगा, फाइन, ठीक है। एंड देयर वाज ऑलवेज अ चांस दैट देयर हेल्थ कुड हैव बीन डैमेज्ड, ओके। सो क्या होगा? हेल्थ कुड बी डैमेज्ड, ठीक है। नाउ प्लीज गाइज अंडरस्टैंड कि ये कोई इमोशनल वो नहीं है कि हो बेचारों की हेल्थ खराब हो जाएगी तो इसलिए हमें नहीं करना है। दीज वर नॉट कंसिडरेशंस आउट ऑफ सिंपैथी, बट दे वर सिंपल इकोनॉमिक कैलकुलेशंस, राइट? इफ यू रिक्वायर टू मेनी स्लेव्स यू वुड हैव टू feed them, clothe them, give them shelters, food, etc. ठीक है? At the same time, what if their health deteriorates? ठीक है? So you're losing out on slaves, you're losing out on your investment. ठीक है? So that was the first thing which they said, that never employ slaves in agricultural sector. ठीक है? Now the other way, fine. So we have some writers who have paid a lot of attention on how the slaves have to be organized or how the slaves have to be managed. ठीक है? So Columella, he was a first century writer. He recommended that landowners should keep a reserve stock of implements and tools. Okay? So, a reserve stock of implements and provisions. ठीक है? सो मतलब उनका कहना है कि अगर आप स्लेव से काम करवा रहे हो तो आपके जो टूल्स हैं, जो इंप्लीमेंट्स यूज करने हैं, दे शुड ऑलवेज बी डबल द अमाउंट ऑफ स्लेव्स दैट यू हैव। सो इफ यू हैव 10 स्लेव्स यू शुड हैव एटलीस्ट 20 इंप्लीमेंट्स, ताकि अगर एक स्लेव का खराब भी हो जाता है देन ही कैन यूज द अदर वन, fine. So it should be twice as many as needed, fine, so that the production is continued and there is no loss of labor. अब मान लो उसका इम्प्लीमेंट ही खराब हो जाएगा तो बैठ जाएगा कि मेरे पास तो है ही नहीं, ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप भी उसको नहीं दे पाओगे, एंड यू कांट रियली पनिश हिम, isn't it? Because implements are your responsibility. Okay, now there was also this general presumption among the employers that if you do not supervise, no work is ever actually going to be done. Okay, so supervision was very important, चाहे वो slaves के लिए हो, चाहे वो free workers के लिए हो, fine. So to make supervision easier, workers were grouped into gangs. Okay, so to make workers were grouped into what? Workers were grouped into small gangs. छोटे छोटे जो teams है ना उसमें उनको बांट दिया जाता था, ठीक है। Columella recommended a squad of 10, ठीक है। Columella ने कितना रिकमेंड किया था? मतलब एक ग्रुप जो है वो कितने का होना चाहिए? उसमें 10 मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए, बिकॉज देन इट इज ऑब्वियसली इजियर टू मैनेज, मतलब उन पे नजर रखना जो है वो आसान है, ठीक है, फाइन। नाउ ओके, now Pliny, who is the author of this famous book called Natural History,
he condemned this division into small gangs or these groups. ठीक है, क्यों प्लिनी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्लेव्स, मान लो कि 10 का गैंग बना है ना, या 10 का ग्रुप बना है, तो एटलीस्ट उसमें हर एक स्लेव का जो एक पैर है वो दूसरे से बंधा होगा. ठीक है, सो एक स्लेव का एक लेग दूसरे वाले से बंधा होगा. इससे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी easier to see who's working and who's not working, and most importantly it will be easier to see कि कोई भाग ना जाए. ठीक है, so when you're working out in the open there's a huge chance that you might run away. Fine. So यहाँ पे वो चीज कह रहे हैं वो कि Pliny was against this supervision because he believed that chaining of the slaves is not good, कि वो हमें नहीं करना चाहिए, because most of the time when you have squads of 10 slaves you would have them chained together ताकि वो उनमें से कोई भागे नहीं. ठीक है, ऑल राइट. तो गाइज एक काम कीजिए, यहां तक इसको टेक डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, क्विकली टेक इट डाउन. Okay, so I'm sure this is done. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि सबका जो है ये हो चुका है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे. चलो भाई. ओके, तो गाइज यहां तक हमने बात की है किसके बारे में? वी जस्ट स्पोकन अबाउट द मैनेजमेंट, है ना, कि लेबर का जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है. ठीक है, फाइन. अब देयर वर डिफरेंट सेक्टर्स जहां पे कि डिफरेंट रूल्स हुआ करते थे. फाइन, ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं कि हर सेक्टर में स्लेव्स को लेकर के रूल्स क्या थे. ठीक है, फाइन. ये ओके. सो अब हम क्या देखें? देखिए, स्लेव्स जो है ना, दे आर अपॉइंटेड नॉट जस्ट इन दी agricultural sector, or not just in household labor. Fine, they are definitely established, definitely attached with other settlements as well, isn't it? और भी settlements हैं जहां पे उनका equal role है. Fine. So there were other settlements where stricter control was established. Fine. So Pliny the Elder describes the condition in the frankincense factories. Okay. So what do we have over here? Who do we have? Pliny. ठीक है? The elder, he's a person. He has described the condition What is a frankincense factory, guys? Frankincense is just like incense sticks. ठीक है, तो खुशबूदार स्टिक्स होते हैं, जैसे हमारे इंसेंस स्टिक्स अगरबत्तियां होती हैं, तो वैसे ही फ्रैंकिनसेंस होते हैं. ठीक है, फाइन. सो फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्री, ऑलराइट, ऑफ Alexandria. So there no amount of supervision would suffice. So he is telling us that no amount of supervision actually worked there. मतलब वहां पे कितना भी सख्ती कर दो, लोग जो है वो काम नहीं करते थे. ठीक है. So what kind of supervision was there? First of all, a seal was put on the workman on the workman apron. Okay. तो सबसे पहली चीज क्या कर रहे थे ये? A seal was put on workmen's
एप्रन, ठीक है। तो जो एप्रन उन्होंने पहन रखी है, जैसे मान लो कि ये मेरा एप्रन है, ठीक है, तो इस पे ना एक सील जो है या एक ठप्पा जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। What is going to be put? A seal is going to be put on this. Fine. तो सील क्यों लगाया जाएगा? ताकि हमें पता हो कि हाँ ये इंसान काम पे आया कि नहीं आया, ठीक है, फाइन। एंड ऑल्सो टू नो कि हाँ ये स्लेव है, ओके। They have to wear a mask or a net with a close mesh on their head, okay. So what do they have to do? They have to wear a mask. Okay. तो क्या करना है गाइज इनको यहाँ पे? what are they supposed to do here? So they basically have to wear a mask, है ना। तो उनको मास्क पहनना है, they have to cover their face and they have to wear a net mesh. I don't know how many of you have seen, आपने शार्क कैप तो देखा ही होगा मूवीज या किसी में, तो नेट मैश जो है ना वो कुछ वैसा ही होता है। इट्स जस्ट दैट इट इज नेटेड, सो इट इज परफोरेटेड, उसमें छेद होती है। सो यू वेयर दैट ऑन योर हेड, ओके। नाउ दिस इज इन साइंटिफिक टर्म्स, अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो आज भी ये होता है। एंड दिस इज एक्चुअली डन सो दैट यू नो हेयर डजंट फॉल इन। मान लो आप कुक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसमें खाना जो है वो गिरना, खाने में जो है आपके बाल नहीं गिरने चाहिए। दैट इज व्हाई द नेट मैश इज वॉर्न, ठीक है, फाइन। एंड बिफोर दे वर अलाउड टू वॉक ऑफ द प्रीमाइसेस, मतलब इससे पहले कि वो अपने घर को जाए, दे हैड टू टेक ऑफ ऑल ऑफ देयर क्लोथ्स, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डन? ठीक है। सो प्रीमाइसेस को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक ऑफ ऑल ऑफ योर क्लोथ्स, ठीक है। ऑल राइट, now guys, we all know that agriculture was definitely like a back-breaking work. That is why the slaves were not really appointed here. ठीक है, fine. So agricultural labor, यहाँ पे एक example दिया हुआ है that agricultural labor must have been very disliked. You know why? Because there was a famous edict of the 3rd century which refers to the Egyptian peasants deserting their villages in order to not engage in agricultural work. तो आप देखो कि वो agricultural work से कितना डरते होंगे कि they had to like abandon, वो अपने घरों को छोड़ करके भाग गए just because they deserted their villages, just because उनको जो villages के काम है, जो agricultural labor है, उसमें participate नहीं करना था। You can imagine how difficult this must have been, ठीक है? All right. Now, there was another law, a law of 398 that refers to workers being branded, okay? So ये बड़ा draconian law है देखा जाए तो, fine. So a law of 398 refers to workers being branded, okay, so that they could be recognized, fine. अब देखिए वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड, एप्रन ब्रांड करना और वर्कर्स को ब्रांड करना दो बहुत अलग चीज है गाइस। वर्कर्स को आप कैसे ब्रांड करोगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। सो बेसिकली जैसे एक रॉड होता है ना, ठीक है। सो अ रॉड यू विल टेक एन आयरन रॉड, इट विल हैव सम काइंड ऑफ डिजाइन, सम काइंड ऑफ स्टैम्प यू कैन से, यू हीट इट अप, ठीक है, उसको आग में डाल करके आप उसको हीट अप करते हो, फाइन, एंड देन यू प्रेस द सेम बर्निंग रॉड ऑन टू समवन्स स्किन, ओके। तो वो जो जला हुआ पोर्शन है, ठीक है, वो पूरा एक डिफरेंट शेप ले लेगा, फाइन। सो व्हेन यू प्रेस इट ऑन समवन्स हैंड,
sometimes was done on the face also. So there is going to be a scar forever, क्योंकि जले का marks जो है वो generally जाता नहीं है, so there's going to be a mark forever. So it will make it easier for the person to be recognized if they have run away. ठीक है? So ये तो हो गई guys, आप देख सकते हो कि strict management जो है different sectors में कितनी है. Fine. Now there's something also called, now this law, fine, this law of 398 has also been referred to as a very draconian law. ठीक है? तो draconian law जो word है वो कहाँ से आता है? ठीक है? Fine. So draconian का मतलब होता है very harsh law. Fine. So it is actually named after a Greek lawmaker whose name was Draco. ठीक है? और वो पता है वो क्या देता था, वो हर चीज, मतलब चाहे कितनी ही पेटी इशू हो, कितना ही पेटी क्राइम हो, हर चीज के लिए he would be giving death sentence, right? So that is where the word is coming from, draconian, which means harsh, which means cruel kind of laws which are there. ठीक है? Fine? Okay. All right. और इसके बाद गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे डेट बॉन्डेज और रूरल इंडेटनेस जो है, दैट वाज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्लेव्स. फाइन. एंड समटाइम्स हाउ पेरेंट्स वुड आल्सो सेल ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो अपने ही बच्चों को बेच देते थे इन सर्विट्यूड. ऑलराइट, बिकॉज ऑब्वियसली दे वांटेड टू हैव मनी. ठीक है? सो इन फैक्ट ऑगस्टीन जिनके बारे में हमने बात की थी, who was basically when we talked about gender literacy and culture, right? याद है आपको? तो हमने ऑगस्टीन के बारे में बात की थी. So Augustine had actually asked one of his lawyer friends that whether these children would be free if their father had died. ठीक है? तो मान लो कि फादर ने ही उनको स्लेवरी में बेचा है. ठीक है? So what if their father died after a few years? Are these children going to be free or not? क्या ये free होंगे या नहीं होंगे? So Augustine has asked this from one of his lawyer friends. Okay? So guys, आप देख सकते हो कि this would have been a prevalent issue. ठीक है? All right. Now, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रूरल इंडेटनेस और डेट बॉन्ड जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता था स्लेवरी का. Suppose if I've taken a debt from you and I'm not able to pay back, right? I will have to sell myself into servitude to you, okay? Now, this is also very evident from the fact that there was a Jewish revolt which happened in 66 CE, okay? क्या था? एक Jewish revolt था जो कि 66 CE में हुआ था, fine? And the revolutionaries had destroyed the money lenders bond, okay? So money lenders क्या करते थे? They would have a खाता, like they would have an accounts book where they will be keeping a track of all the money which has been taken from them. ठीक है? So वहां पे आप क्या देखोगे? जब Jewish revolt हुआ, so people destroyed all those debt bond records. ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा prevalent होगा या कितना ज्यादा खतरनाक होगा. that when people are revolting, this is the first thing that they're thinking about कि हाँ हमें ये debt bonds जो हैं वो destroy कर देने चाहिए. ठीक है? Now, we can always say that the bulk of the labor was definitely not slavery. ठीक है? और eventually आप देखोगे that people had started moving towards, from slavery they had started moving towards wage laborers, right? Why? Because it got the work done faster. ठीक है? काम जल्दी होता था, बेहतर होता था, and most importantly, the person who was owning the laborers did not really have that kind of responsibility also himself. है ना? उसकी वो जिम्मेदारी नहीं थी, उसने पैसे दे दिए और उन्होंने काम करना है, सिंपल सी बात है. He did not have to feed them, clothe them or give them shelter and things like that. वो करने की जरूरत ही नहीं थी. ठीक है? So that is why that wage laborers was something which was more prevalent towards the later part of the Roman Empire. ठीक है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. So, in the late 5th century, there was this emperor called Anastasius, and he wanted to build the eastern frontier of the city of Dara. ठीक है? And he was able to do this in less than 3 weeks. How? He basically offered huge and larger wages to the wage laborers. They worked faster, and hence he was able to construct
the frontiers of the boundaries of the eastern part of the city in less than 3 weeks. तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे लोगों का जो रुझान है वो ऑब्वियसली किसकी तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली वेज लेबरर्स की तरफ ही जा रहा है. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज द सोशल हायरार्की. ठीक है, और सोशल हायरार्की को भी हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे गाइस. सो वी विल डिस्कस इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वी विल डिस्कस इट इन द फॉर्म ऑफ अर्ली एम्पायर एंड देन लेटर एम्पायर. ठीक है, चलिए. Okay, so our information comes from where? So we have Tacitus, all right, और उन्होंने जो लीडिंग सोशल ग्रुप्स बताए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. फाइन. सो सबसे पहले कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द सेनेटर्स. ठीक है, द फर्स्ट ग्रुप और द फर्स्ट सोशल सेक्टर इज सेनेटर्स. इनको पार्टेज भी कहा जाता है, which means father. ठीक है, so they were considered as what? They were considered as father figures. ठीक है, then you have leading members of the equestrian class. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी. ठीक है, आफ्टर दिस व्हाट डू यू हैव? देन यू हैव द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. Then you have those attached to great houses. ठीक है, then what do you have? Then you have the unkept lower classes. Also known as your plebs sordida. ठीक है, and lastly you have slaves. Okay, let me explain this. तो पहला तो आप समझ गए गाइस कि पहला सेक्शन किसका है? सेनेटर्स का है. दे ऑल्सो रेफर टू एज पार्टेज और फादर. They're not actual fathers, they're like father figures. Fine. Then you have leading members of the equestrian class. Equestrian class का मतलब क्या होता है? Equestrian का मतलब होता है cavalry. ठीक है, फाइन. सो दे आर बेसिकली लीडिंग मेंबर्स ऑफ व्हाट? लीडिंग मेंबर्स ऑफ योर आर्म्ड फोर्सेस. फाइन. सो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये सेकेंड कैटेगरी फॉर्म कर रहे हैं. कौन? जो लीडिंग मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के. Then you have respectable sections of the society. Like for example, maybe teachers, doctors. ये लोग respectable लोग हैं, respected लोग हैं. Maybe not so rich, but yes, definitely respected. ठीक है? Then you have people attached to the great houses. What do you mean by great houses? यहाँ पे great houses से मतलब है जो बड़े खानदानों से ताल्लुक रखते हैं वो लोग. Like for example, in today's world, for example, if you belong to maybe the Ambanis, or if you belong to maybe the Tata family. ठीक है? So if you attach to the great houses, यानी आपका ताल्लुक जो है वो बड़े खानदानों से है, then that is your next category. Then you have the lower classes, who are known as your plebs sordida, fine, who are addicted to circus and theatrical displays. I'm sorry for that. Theatrical displays, fine.
और फाइनली कौन आता है? फाइनली आते हैं हमारे स्लेव्स, ठीक है? ऑल राइट, ओके। तो ये तो हो गया अर्ली एम्पायर का गाइस, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं हमारा जो लेटर एम्पायर है, लेटर पार्ट या फिर लेट एंटिक्विटी भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, सो गाइज लेट एम्पायर जो है उसमें क्या हुआ है? फाइन, सो लेट एम्पायर यू ऑल नो स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? विद द 3rd century crisis. So basically it is from the 4th to the 7th centuries. Fine. So what has happened here? Okay. तो चलिए हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन का जब रेन शुरू होता है, so the groups which have been mentioned by Tacitus, okay, so the first group, the senators and the members of the equestrian class are grouped and formed into an aristocracy, ठीक है? तो पहला सेक्शन कौन सा है? पहला है वी हैव दी aristocracy. So इसमें you have what? You have senators plus members of equestrian class, ठीक है? तो इसमें ना आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। Okay, so these two, first two are combined, senators and leading members of the equestrian class. इनको कंबाइन करके क्या बनाया गया है? So इनको कंबाइन करके एक फर्स्ट कैटेगरी जो है वो क्रिएट की गई है, दैट इज द कैटेगरी ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ठीक है? फाइन, ओके। द मिडिल क्लासेस, अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारा कौन सा है? यू हैव द मिडिल क्लासेस, ठीक है? तो मिडिल क्लासेस में कौन कौन से लोग आएंगे गाइस? चलिए मैं आपको वो लिखवा देती हूँ। सो बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ mass of people, so people who were involved in imperial service in the armed forces, ठीक है? So people who are involved in what? जो imperial service मतलब राजा के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है? Who are involved in, there was farmers also, there are merchants also, ठीक है? Who else is there? हाँ, there also people who are working in the army, ठीक है? तो ये सब लोग क्या हैं गाइस? ये सब लोग आपके मिडिल क्लासेस में आ जाएंगे, ठीक है? एक सेकेंड, लेट मी सी इफ वी मिस एनीथिंग। So इनके नीचे कौन है? So we have the 3rd class, you can say the lower class, who are also known as the humiliors, ठीक है? So we have what? We have the lower class, जिसको कि क्या कहा जाता है? humiliors कहा जाता है। फाइन, तो humiliors अब लोअर क्लासेस हैं गाइस, तो इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? सो देयर वाज रूरल लेबर वर्कफोर्स, फाइन। तो humiliors में कौन कौन आ जाएगा? सो देयर वाज रूरल वर्कफोर्स, ऑलराइट, रूरल लेबर यू कैन राइट, ठीक है? तो ये क्या है? दिस इज योर रूरल वर्कफोर्स, यू कैन से रूरल लेबर जो है वो आएगा यहाँ पे। दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ योर humiliors और द 3rd सेक्शन, द लोअर क्लासेस, ठीक है? फाइन, देन यू हैव those people, workers, of industry and mining, फाइन। तो रूरल लेबर फोर्स तो है ही है,
प्लस जो वर्कर्स हैं जो माइनिंग इंडस्ट्रीज में और नॉर्मल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वो लोग भी होंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइन. देन यू विल हैव द माइग्रेंट वर्कर्स इज वेल, ओके. Then you have the self-employed artisans, okay, migrant workers. Self-employed artisans, and then what? Okay, then you have wage laborers, and then lastly you have slaves. ठीक है गाइस, मैंने ये सारा इसीलिए लिखा है, एक एक करके मैंने प्रॉपर यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज कभी कभी ना आपको क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, ठीक है, उसमें से आपको ऑड वन आउट चूज करना पड़ेगा, कभी कभी ट्रू फॉल्स हो सकता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको यू नो कॉम्बिनेशन चूज करनी पड़ती हैं. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी कैटेगरी विच वाज देयर, ऑलराइट, और इसलिए मैंने उसको अलग से कॉमा कॉमा करके लिखा है, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सोशल हायरार्कीज में. सो इन द अर्ली एम्पायर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, in the later empire these first two groups, as in senators and the leading members of the equestrian classes, they were grouped together to form what? The aristocracy, ठीक है. Then we have the middle classes, which comprised of people who were in the imperial service, either they were farmers, they were merchants, or in the army. And then finally you have the lower classes, which is that of your humiliors, fine. So they consisted of the rural labor force, workers of the industry, mining. Then you have migrant workers, self-employed artisans, wage laborers, slaves, etc. ठीक है, ओके. टेक 2 minutes, इसको 2 मिनट लीजिए और उसको 5 मिनट लेकर के फटाफट से इसको फिनिश कीजिए, फिर हम आगे बढ़े. गाइज इसको आप बाद में टेक डाउन कर सकते हैं, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बिकॉज आई डू वांट टू फिनिश विद दिस चैप्टर टुडे, ठीक है. चलो, okay. So now guys, since we are talking about the social hierarchy, it is also important that we talk about the how the economic hierarchy was being maintained, ठीक है, उसके बारे में हम बात करें, वो भी बहुत जरूरी है. फाइन. सी गाइज, द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ रोम वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सिल्वर बेस्ड करेंसीज, ठीक है, लेकिन द मॉनेटरी सिस्टम ब्रोक. व्हाई? because the silver based currencies in the first 3 centuries, so ye kahan se aa rahe the? They were all coming from Spanish silver mines, okay, but the Spanish silver mines were exhausted, theek hai, khatam ho gayi thi, exhaust ho gayi thi, fine. So now the government had basically run out of silver metal to support the making of those coins, theek hai, fine. So Constantine ने क्या किया? Constantine is also Roman emperor, we'll get to know about him. So Constantine did what? He basically replaced the currency from gold, ठीक है, सिल्वर से उन्होंने करेंसी जो है वो किस में कर दिया था? गोल्ड में कर दिया था, फाइन. So now there was a huge amount of gold which was in circulation, fine. So पहले सिल्वर था, now a huge amount of gold is in circulation. Can you imagine? सिल्वर से सीधे कहां चले गए हैं? सिल्वर से सीधे गोल्ड में चले गए हैं, ठीक है, फाइन. पर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जितनी हम बात कर रहे हैं ऑफ यू नो लॉ, दिस दैट, ये वो, करेंसी, richness, economy so good, everything, we have to understand that there was corruption as well, isn't it? हर इंस्टीट्यूशन में, हर कैटेगरी में, हर इदारे में करप्शन होता ही होता है. And similarly, here also you will see a lot of corruption. You know why? Because see guys, these groups, these aristocrats, they have become even more powerful. How have they become powerful? Because they are now earning in gold. ठीक है, अब ये सिल्वर में नहीं, अब ये गोल्ड में अर्न कर रहे हैं. So definitely they have become much more
पावरफुल, isn't it? और भी कहीं ज्यादा जो है वो पावरफुल हो चुके हैं. फाइन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ करप्शन. करप्शन की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है. ठीक है. So the extortion of the higher bureaucracy and the greed of the provincial governors was proverbial. मतलब एक अच्छे खासे लेवल पे था. लेकिन यहाँ पे हम एक चीज अच्छी बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इंटरवीन करती थी टू कर्ब दिस करप्शन. ऑलराइट, द गवर्नमेंट वुड ऑलवेज इंटरवीन. फाइन, हमें कैसे पता कि गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है? Because we have sources regarding the laws. Okay, जो गवर्नमेंट ने इस करप्शन के अगेंस्ट लॉज बनाए थे उसके हमारे पास सोर्सेज हैं. सो वी कैन सेफली से दैट यस, द गवर्नमेंट वाज डेफिनेटली इंटरवीनिंग टू स्टॉप दिस प्रैक्टिसेस. ठीक है. अब देखिए गाइस, एक चीज ना हमें बहुत अच्छी यहां पे समझने को मिलती है, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ क्रिटिसिज्म. Okay, see, the Romans were ruling with the help of monarchs. ठीक है, and these monarchs were usually absolute monarchs. You couldn't really question them. Fine, they were authoritarian regimes and dissent was usually not tolerated. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे. Yes, there was this element of criticism which was very prevalent among the Romans. जो बात उनको समझ में नहीं आती थी, जो बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, they would definitely protest against it. चाहे बाद में उनको फांसी की ही सजा क्यों ना दे दी जाए, वो फर्क नहीं पड़ता, बट वो प्रोटेस्ट जरूर करते थे इस चीज को लेकर के. ठीक है. So अब इन प्रोटेस्ट से क्या हुआ? बिकॉज व्हेन पीपल वर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, है ना, जब लोग बाहर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, so this created a little bit fear in the minds of the emperor. Fine, the emperors also realized that we have to be good with the people, क्योंकि अगर राजा जो है वो लोगों के साथ अच्छा नहीं है, he can never become a king, right? People will keep on protesting and there's never going to be peace in his empire. Fine, so from the 4th century onwards, there was this the rule of law became something very important, that even the most fearsome, या फिर कह लो even the most fearless of the emperors would be fearing this rule of law and they would try to work according to the rule of law, जो कि बहुत बड़ी बात है. और आगे जाके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कह लो, राइट्स कह लो, इन चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है रोमन एम्पायर का. ठीक है. ऑलराइट, तो यहां तक सबको क्लियर है? फाइन. सो चलिए अब हम हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे चलते हैं, व्हाट इज लेट एंटिक्विटी, एंड लेट मी सी इफ वी हैव मिस्ड एनीथिंग. ऑलराइट, सो अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ वी विल मूव ऑन टू द पीरियड ऑफ लेट एंटिक्विटी. ठीक है. क्या है ये लेट एंटिक्विटी? चलिए देखते हैं. What is this period of late antiquity? ठीक है. So how can it be described? मतलब हमारा basic description क्या है लेट एंटिक्विटी का? First of all, it is a period from 4th to the 7th centuries. ठीक है, ये याद रखेंगे. कब से कब तक है? Okay, 4th to the 7th centuries है. Fine. So here you will see the Roman world in its final centuries. So late antiquity is a term which is used to describe the final and fascinating evolution and the breakup of the Roman Empire. ठीक है. So what it describes is the evolution and breakup of Roman Empire. ठीक है. तो यहां पे आप देखोगे कि इवॉल्व भी करेगा, ठीक है, बेटर भी होगा, लेकिन इसके बाद भी इसमें जो डिक्लाइन है वो आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. फाइन. सो काफी सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुए हैं, बीट कल्चरल, बीट सोशल, बीट इकोनॉमिकल. फाइन. सो चलिए हम वो चेंजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे. फाइन. सबसे पहला चेंज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कल्चरल चेंज. ठीक है. So what happened? What cultural change happened? So cultural change की अगर हम बात कर रहे हैं,
So this happened under Constantine. देखिए guys, जो हमारा फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी था वो था हमारा अर्ली एम्पायर, ठीक है, फाइन. And now we have moved on to the late antiquity, which is basically a period from 4th to the 7th centuries. ठीक है, कब से कब तक है? 4th से 7th century तक है. और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? This is also described as the period of evolution and breakup of the Roman Empire. Fine. So यहाँ पे आप evolve भी होता देखेंगे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि evolution नहीं है, एवोल्यूशन भी है. इनफैक्ट बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी चेंज भी होगी, बट एट द सेम टाइम यू विल सी द डिक्लाइन एज वेल. Fine. Now this period is also marked with a number of cultural, social, hierarchical, or you can see different kinds of changes have happened during this period. ठीक है, तो क्या changes हुए हैं चलिए हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले we are looking at what the first thing we are looking at is cultural change. Okay, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं गाइस? सबसे पहले हम कल्चरल चेंज देख रहे हैं. तो चलिए हम देखते हैं कि कल्चरल चेंज में जो है वो क्या हुआ था, व्हाट ऑल हैज हैपेंड. फाइन. Constantine, he is one of the emperors of the Roman world. He has decided to make Christianity as the official religion of Rome. ये सबसे important cultural change है, ठीक है. Constantine So Constantine has been made what? He has been made as the, sorry, Constantine nahi, Christianity has been made as the official religion. You will also see the rise of Islam. (612 to be precise. ठीक है, फाइन. इसके अलावा आप क्या देखोगे? फाइन, ओके. इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है ना उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी, एंड दिस हैपेंड अंडर डिक्लोशियन. फाइन. सो ये तो हो गई गाइस कल्चरल चेंजेस. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट, नाउ वी विल सी अबाउट दी स्ट्रक्चरल चेंजेस. ठीक है, सो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो कौन लेके आया है? So structural changes have all been brought under whom? It has all been brought under Emperor Diocletian. ठीक है, or you can say Diocletian. Fine. Okay. So Diocletian ने structural changes किए. कहां पे? जो एम्पायर है वहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए. सबसे पहला चेंज क्या किया? ओवर एक्सपेंशन वाज कट बैक by abandoning those territories which did not have any strategic or economic value. ठीक है, देखिए गाइस, ओवर एक्सपेंशन करना कोई बहुत अकलमंदी की बात नहीं होती है. ठीक है, ओवर एक्सपेंशन आप कर देते हैं, बट देन एट द सेम टाइम यू हैव टू लुक आफ्टर दैट एरिया ना. ऐसा तो नहीं है कि बस हवा में आपने ओवर एक्सपेंशन कर दिया और सब कुछ जो है वो चल जाएगा. नहीं, यू हैव टू लुक आफ्टर दैट एरिया, यू हैव टू गवर्न दैट एरिया. सो हाउ विल यू डू इट? ठीक है, सो ओवर एक्सपेंशन वाज कट बैक. सो उन एरियाज को गिव अप कर दिया गया जिनका कोई भी स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था. ठीक है, सो ठीक है, तो जिनका कोई भी स्ट्रेटेजिक काम नहीं है
जिनका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसको इन्होंने हटा दिया. फाइन. ही ऑल्सो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स, रीऑर्गेनाइज्ड प्रोविंशियल बाउंड्रीज. ठीक है, फोर्टिफाइड फ्रंटियर्स. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्टिफाइंग द फ्रंटियर्स? तो जितने भी बाउंड्री एरियाज थी उस पे फोर्टिफिकेशन की गई ताकि अगर अटैक हो तो उसको आसान हो डील करना. ठीक है, देन ही रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज. What do you mean by reorganizing provincial boundaries? मान लो कि ये मेरा एरिया है. ठीक है, फाइन. और जो शहर है उसकी ये बाउंड्री है. ठीक है, फाइन. लेकिन what have I done is to cut back over expansion, मैंने ये वाला जो एरिया है ना इसको अबैंडन कर दिया है. ठीक है, this area, the area that I'm shading, I have abandoned this because इस एरिया का कोई काम नहीं है. Unnecessary, I'm spending a lot of money over here. ठीक है. So now earlier my boundary was over here. ठीक है, ये मेरी बाउंड्री थी और ये मेरी बाउंड्री थी. ठीक है, use a different color. This was my boundary and then this was my boundary. Fine, but I have abandoned this area. So now don't you think boundaries are going to change? So now the boundary for this area is going to be this. है ना, ये क्या बन जाएंगी? ये मेरी बाउंड्री बन जाएंगी. तो वहां पे वही वो कहते हैं कि रीऑर्गेनाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द एरियाज व्हिच वर गिवन अप. ठीक है, फाइन. नाउ ही आल्सो सेपरेटेड द मिलिट्री एंड सिविलियन फंक्शंस, गिविंग अ लॉट मोर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स. ओके, सो व्हाट हैज ही डन? और गाइस सिविलियन फंक्शन की क्या मतलब होती है? सिविलियंस आर बेसिकली कॉमन पीपल. ठीक है, सो ही सेपरेटेड द फंक्शंस ऑफ द सिविलियन एंड द मिलिट्री पीपल. फाइन. एंड व्हाट हैज ही डन? गिवन greater autonomy to military commanders. ठीक है, तो जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको क्या किया गया है? सॉरी कैसे मेरी मिस्टेक हो गया. So जो मिलिट्री कमांडर्स हैं they have been given what? They have been given a lot more autonomy. ठीक है, और मिलिट्री कमांडर्स को क्या कहा जाता है? ड्यूसेस कहा जाता है. फाइन. What are they known as? They're known as your ड्यूसेस. ओके, फाइन. So what are they known as? They're known as ड्यूसेस. So उनको जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल दिया गया है, उनको ऑटोनॉमी जो है वो दी गई है. ठीक है, फाइन. ऑलराइट, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि मॉनेटरी फेज में जो है वो चेंजेस क्या लाए गए थे. ठीक है, ये तो हो गए स्ट्रक्चरल चेंज. ओके, so now we discuss what? Now we discuss changes in the monetary field. So guys देखिए, हम ऑलरेडी जानते हैं कि सिल्वर माइंस हैव आर ऑलमोस्ट ओवर. ठीक है, सिल्वर माइंस जो है वो खत्म हो चुकी हैं. So now there were some chief innovations which was done particularly now in the field of monetary. ठीक है, so a new coin which was known as solidus was invented, or you can say introduced, which has 4.5 gram of pure gold. ठीक है, fine. So new coin called, तो एक नया कॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको कि सॉलिडिस कहते हैं, which is how many? 4.5 grams of pure gold. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा ही जो है ये गोल्ड से बना हुआ है. फाइन. सो यू हैव व्हाट?
you have 4.5 grams of pure gold. Okay. Now, solid E was minted on a very large scale and their distribution was running into millions. मतलब huge scale पे इसको जो है वो mint किया गया and was distributed amongst the millions. Fine. Now, there was another innovation which happened, and that is Constantine had changed his capital. So, he had created a second capital at Constantinople. ठीक है? So, what did he do? एक और change था, created a second capital at Constantinople, जो कि प्रेजेंट डे कहां पे है गाइस? प्रेजेंट डे तुर्की में है. फाइन. दिस इज प्रेजेंट डे इस्तांबुल, जिसको हम कह सकते हैं तुर्की में है. सो ही हैज चेंज्ड व्हाट? ही हैज चेंज्ड हिज कैपिटल आल्सो. फाइन. ऑलराइट. इसके अलावा और भी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है. फाइन. There were certain economic changes also which have taken place. Fine. Monetary के अलावा economic growth जो है वो भी हुई है. तो चलिए हम वो देख लेते हैं कि what economic growth has taken place. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ में देखो क्या हुआ है. तो ऑब्वियसली यू हैव द मनी इकोनॉमी, है ना. मनी आपके पास है ही है. फाइन. ठीक है. सो यू कैन सी दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स मेड एज फार एज द डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड. ठीक है. तो कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स जो है या फिर कह लो कुछ इन्वेस्टमेंट्स की गई थी रूरल एस्टैब्लिशमेंट्स में, एंड इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल प्रेसेस, glass factories were being set up. ठीक है. So there was what? There was investment in rural areas. ठीक है. So क्या सेटअप की गई guys? Factories like what? क्या क्या factories? Oil press, glass factories. Okay. What else was there? So now there was also multiple water mills. ठीक है. And long distance trade with East. ओके. सो ये सब क्या है गाइज? ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ है या कह लो इकोनॉमिक चेंजेस हैं जो किए गए हैं, या फिर कह लो हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ है. ठीक है. So what has Constantine done? He has changed his capital, or he has created, you can say, a second capital in Constantinople, which is present day Istanbul in Turkey. Fine. So obviously you are going to need things, है ना. वहां आपने एक नया कैपिटल क्रिएट किया है तो वहां के लिए आपको चीजें तो चाहिए ही होंगी, isn't it? You are going to need a lot of things. Fine. Now with the monetary expansion, monetary growth already हो चुकी है, we have gold now. Fine. So rural investments were made, और rural areas में आपको ये factories देखने को मिलेंगी. Factories like oil presses, glass factories, you will have multiple water mills being established. ठीक है. इसके अलावा जो ट्रेड है ईस्ट के साथ, that has also been revived. ठीक है. All right. सो गाइज देखिए अब इसमें और भी चीजें हैं जो हमें थोड़ी सी डिस्कस करनी है. ठीक है. बट वी आउट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो. कल तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी छुट्टी होगी, कल क्लासेस नहीं है. बट यस टुमारो डे आफ्टर वील हैव क्लास. तो उसमें हम
जो थोड़ा सा पोर्शन बच गया है रोमन एम्पायर का वो फिनिश करके देन वील मूव ऑन टू द नोमैडिक एम्पायर्स, ठीक है। तो आज हमने काफी कुछ जो है वो कवर कर लिया है गाइज, व्हाट ऑल हैव वी कवर्ड। सो हमने रोमन इकोनॉमी में जो मच लेस एडवांस्ड एरियाज हैं वो देखे, फाइन। देन वी हैव आल्सो सीन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस व्हिच हैज हैपेंड, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हाइड्रोलिक माइनिंग होती है ना गाइज, उसमें बेसिकली आप समझ ही गए होगे कि इतनी फोर्स से आपको पानी बाहर निकालना है यूजिंग अ पाइप और यूजिंग एनी काइंड ऑफ मशीन, कि पानी इतनी फोर्स से निकले कि पत्थर पे लगे और पत्थर टूट जाए। दैट वाज द आइडिया। देन वी हैव सीन स्लेवरी, ओके। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्लेवरी देखी, हमने वेज टू क्रिएट स्लेव्स देखे। देन वी सॉ द मैनेजमेंट ऑफ स्लेव्स की कैसे होता है, ठीक है। देन वी हैव सीन रूल्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, फाइन, कि किस सेक्टर में किस तरह के रूल्स हैं, ठीक है, वो देखे हमने। वेरियस एग्जांपल्स देखे कि कैसे डेट बॉन्ड्स जो हैं they were how they were used to create slavery, fine। उसके बाद हमने एक और चीज देखी कि कैसे एग्रीकल्चरल लेबर से लोग भागते थे, फाइन। so we've seen examples like that also। then we saw the social hierarchy, how it was in the early empire, how it was in late empire, how it changed। उसके बाद हम लेट एंटिक्विटी पे गए, हमने 4 to 7 सेंचुरी का पीरियड देखा, उसमें कल्चरल चेंज देखे, उसमें हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे। आई होप कि आपको ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे, दैट हाउ द प्रोविंशियल बाउंड्रीज आर बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। चेंजेस इन द मॉनेटरी सिस्टम जो है हमने वो भी देख लिया, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं दैट ऑल्सो वी हैव सीन, ओके। मैं एक बार फिर से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल बाउंड्रीज समझाना चाहती हूं। जैसे अगर ये एरिया है, ठीक है, और ये जो है ये मेरी बाउंड्री हुआ करती थी इस एरिया की, ठीक है, फॉर दिस एरिया, फाइन। बट आई एम कटिंग बैक ऑन दिस एरिया। ये वाला जो पोर्शन है ना, मुझे लगता है कि इसका कोई स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, सो आई एम कटिंग ऑफ दिस एरिया, ठीक है। सो दिस एरिया इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, फाइन। विच मीन्स जो मेरी बाउंड्री है अब वो यहां से ये हो चुकी है, ठीक है। दिस इज बिकम माई बाउंड्री, ओके। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय रीऑर्गेनाइजिंग प्रोविंशियल बाउंड्रीज, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ आप समझ ही चुके हैं, बिकॉज वी हैव गोल्ड, इजंट इट। पहले सिल्वर में डील कर रहे थे, नाउ दे आर डीलिंग इन गोल्ड, सो दे हैव इनफ मनी टू मेक सम, यू कैन से, इन्वेस्टमेंट। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन इन द रूरल एरियाज, और वहां पे उन्होंने फैक्ट्रीज जो हैं वो लगाई हैं। इसके बाद और भी चेंजेस हैं जो हमें डिस्कस करनी है, सो दैट आई विल डू नाउ इन द नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट। सो आई रियली होप कि यहां तक सबको सब कुछ बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी, फाइन। सो देखिए गाइस, मैं आपसे बार बार एक चीज कह रही हूं कि अभी जो है वो मैं आपको बेसिक एनसीईआरटीज क्लियर करवा रही हूं, ठीक है। जहां पे भी मुझे लगेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, वेरेवर आई फील कि हाँ हमें इसे थोड़ा सा ऊपर जाना है या थोड़ा सा ऊपर लेवल का पढ़ना है, आई विल बी टीचिंग यू ऑल, डोंट वरी। मैं ग्रेजुएशन लेवल वाला जो है वो भी कवर करवाऊंगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अभी फिलहाल हम अपना बेसिक्स जो है वो क्लियर कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, alright guys, I think I'll end the session over here. So, and also if you have any doubts, any difficulties, you are more than welcome to let me know. आप मुझे बता सकते हो, this is a live class. Just give me 1 second, I'll call for the tab. Okay, 2 मिनट दीजिए। Okay, so I don't think किसी को कोई doubt है, ठीक है। So alright guys, I think I'll end the session over here, fine. So thank you so much for joining me over here. It was an absolute pleasure to have you all. I will now see you in the next lecture. Please take care. Thank you. Bye-bye.